Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. This is the fifth lecture I have explained. In this lecture, I have discussed about the third model of theory and its assumptions according to its equations. And the second discussion is about the applications of adsorptions. And the third, we are discussing about the surfactants and its relations. The chapter is Surface Chemistry, the properties of surfaces. The third model of theory is Brunauer-Emmett-Taylor. This is the model of equations. This is phenomena basically explain the theorem with the relationship of multi-layers of phenomena. Multi-layer adsorption assumptions are basically describe BET model. BET are the three scientist theory. These models are basically discovered in 1938. This is also called theorem. In these theorems are basically explained as the gas molecules which is adsorbed in a solid surface of adsorbents in multi-layer of formations, which is categorized into one layer, second layer, third layer, and the fourth layer. These are the assumptions which are described with the relationship of these pictures of phenomena. And these pictures are basically explain the relationship according to solid surface is a uniform distributions that is called the localite sites. यानी solid के surface पे gas के molecules क्या आ रहे हैं multi layers की formations बना रहे हैं यानी multi layers आके बना रहे हैं इस पे तो surface area basically depend किस पे कर रहा है nth number of models किस पे categorize कर रहे हैं first layer second layer third layer and the fourth layer of model यानी BT theory deviates from the ideal or the actuals of the analysis इसकी एनालिसिस करिए कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं एड्सॉर्बिंग की सरफेस पे अगर वो फर्स्ट लेयर की फॉर्मेशन में आ रहे हैं सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल्स उस फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहे हैं एंड थर्ड लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकेंड लेयर के ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं ठीक है मल्टी लेयर्स ऑफ सरफेस फिनोमेना बना रहे हैं सो वी कैन इजीली से दैट द सेकेंड लेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज एड्सॉर्ब फर्स्ट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस सेकेंड लेयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब हुए हैं फर्स्ट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस and the third layers of molecules are depends on the second layers of molecule surface which can easily show that the all layers of depends on the surface area of adsorptions so it means that कि जितने भी molecules हैं वो depend कर रहे हैं surface area of adsorptions पे तो these are the phenomena for the multi layers of adsorption phenomena तो यहाँ पे बताया गया है कि गैस molecules are physically adsorb हो रहे हैं in a solid layers of surface there is no interaction between the each of adsorption layer so it means that यहाँ पे कोई interaction नहीं हुई है कि बीच में कोई molecule आया हुआ है सरफेस के ऊपर molecules हैं उस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड molecules आए हुए हैं and the Langmuir theory can apply to each other यानी यहाँ पे Langmuir theory भी अप्लाई हो रही है Langmuir का मॉडल क्या था आपके पास मोनो लेयर्स की फॉर्मेशन बनाना था इन सरफेस के ऊपर इसी तरीके से रिलेशनशिप में आपके पास assumptions क्या आती हैं कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक और लेयर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कवर हो रही है सो इट्स मींस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर्स आर बेसिकली रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स adsorption involves informations of the multi layers of molecules multi layers generate हो रही हैं first layers with the fixed with the heat of adsorption phenomena following layers with heat of adsorption constant so it means यहाँ पे हम ये discover कर रहे हैं कि first layers of heat of adsorption is equal to constant and all the layers of heat of adsorption is depending on the succeeding layers यानी आपके पास बता रहा है कि फर्स्ट लेयर की हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है बेसिकली डिपेंडेबल फॉर द डेल्टा एच कांस्टेंट के बराबर है सेकंड लेयर की हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगी फर्स्ट लेयर की हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन के मॉलिक्यूल्स के साथ द फॉलोइंग लेयर्स विद द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आर द कांस्टेंट surface it means that the no capillary condensations is gives there is a dynamic equilibrium between the successive layers के दरमियान क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है सो इट्स मींस यहाँ पे एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है गैस विच इज चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्मेशंस ठीक है मॉलिक्यूल्स के ऊपर सेकंड मॉलिक्यूल्स की डिस्कवर हो रहा है एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स की लेयर्स आ रही हैं मल्टी लेयर्स फॉर्मेशंस यहाँ पर हो रही है इंटरेक्शंस नहीं हो रही हैं एक फिजिकली एड्सॉर्ब हो रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे सरफेस पे ठीक है अब यहाँ पे आपके पास कैपिलरी कंडेंसेशन बिहेवियर ये बताया है कि ये आपके पास मोनो लेयर्स जनरेट कर रहा है या आपके पास मल्टी लेयर्स फॉर्मेशन हो रही है इन अ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट लेयर्स एंड दिस इज द कैपिलरी कंडेंसेशन फिनोमेना अकॉर्डिंग टू रिलेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे जनरेशन क्या हो रही है अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद है वो कैपिलरी कंडेंसेशन का फिनोमेना जनरेट करता है तो इट्स मीन द सरफेस एरिया ऑन अ मॉडल ऑफ एड्सॉर्प्शन व्हिच इज इनकॉर्पोरेट फॉर द मल्टी लेयर्स ऑफ कवरेज ठीक है कैपिलरी कंडेंसेशन यहाँ पे हमने डिस्कवर किया बीटी इक्वेशन आपके पास क्या डिस्कवर करें यहाँ पे हम डेरिवेशन को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम बीटी के मॉडल को यानी हम यहाँ पे इसके थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं बीटी का मॉडल किस पे डिपेंड कर रहा है हम इससे पहले अपने
लैंगवे थ्योरी को कर चुके थे और फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्कस कर चुके थे, जो बेसिकली द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम लैंगवे पे आए थे, तो लैंगवे भी आपके पास क्या कर रहा था, रिलेशनशिप विद द प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे आपका प्रेशर का फिनोमेना क्या है कि वेयर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज एब्जॉर्ब एट द प्रेशर रिड्यूस द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो जिसका रिलेशन है किसके साथ, प्रेशर के साथ। इज द प्रेशर standard vapor pressure Vm it means the monolayers of formations. तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मोनोलेयर्स ऑफ द फॉर्मेशंस। सी आपके पास क्या बता रहे हैं, कंसंट्रेशन बता रहे हैं। ये कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास बैड कांस्टेंट है फॉर अ गिवन गैस। अब वो गैस क्या हो सकती है, गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी सरफेस पे होते हैं, वो कोई भी गैस आपके पास मौजूद हो सकती है सरफेस के ऊपर। तो ये सी आपके पास क्या है, बैड कांस्टेंट है, जो रिलेट कर रहा है विद द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर की एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड लेयर की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट लेयर की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, पी ओवर पी नॉट आपके पास, पी ओवर पी नॉट का रिलेशनशिप आपके पास रिलेटिव प्रेशर ऑफ एडसॉर्बेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सी जो है हमारे पास बैड कांस्टेंट है। बैड कांस्टेंट का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हो सकता है, यानी हीट से हो सकता है, एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यानी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर पे भी डिपेंड कर सकता है और हीट ऑफ लिक्विफिकेशन के प्रोसेस पे डिपेंड कर सकता है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन थी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो आपके पास फाइनल इक्वेशन है बीएटी इक्वेशन की, इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू ब्राउनर एमिट टेलर के हम यहाँ पे थ्योरम को डिस्कस करते हैं, जिसका फिनोमेना था अकॉर्डिंग टू टू ग्राफ्स ऑफ द रिलेशनशिप in which one graphs are relationship for the extent of adsorption, x is the mass of adsorbate and the mass of adsorbent। ये हमने अपना लैंग्वेज में डिस्कस किया था, साथ में हमने फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी डिस्कस किया। सी इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, कांस्टेंट, बेड कांस्टेंट है, जो किसी भी गैस का पर्टिकुलर हो सकता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी पे, रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एनर्जी की रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, डिपेंडेबल किस पे है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, जो आपके पास किसी भी गैस का हो सकता है। यानी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर पे डिपेंड कर रहा है एंड हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। E1 आपके पास हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर एंड E2 बेसिकली डिपेंड कर रहा है हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ प्रोसेस। अगर मैं C की इक्वेशन को जनरेट करूं, तो C की इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरीके से बन सकती है कि C इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय RT। तो C की इक्वेशन आपके पास क्या कहलाएगी, E1 पे डिपेंड कर रही है, E2 पे डिपेंड कर रही है, गैस कांस्टेंट पे डिपेंड करिए, क्योंकि डिवाइडेड बाय आरटी को डिस्कवर कर रहे हैं हम, गैस कांस्टेंट पे डिपेंड करिए, डिपेंडेबल फॉर द टेम्परेचर। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फिनोमेना इससे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन। तो ये तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड द y एक्सिस, p ओवर p नॉट इज द x एक्सिस फिनोमेना। इंटरसेप्ट आपके पास जनरेट हो रहा है और आपके पास स्लोप क्या बन रहा है, c माइनस 1 vm इट्स फॉर आपके पास क्या बता रहे हैं, मोनोलेयर फॉर्मेशन है वॉल्यूम का, रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन। तो these are the relationship according to the model of theory which is depend for the multi layers of adsorption phenomena। अब इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या कहती हैं, इसकी एप्लीकेशन है फॉर द रिलेशनशिप ऑफ adsorption phenomena depends for the numerous of the applications in a laboratory industries and multi-purpose हम जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्कवर किया है adsorption की एप्लीकेशंस को। प्रोडक्शंस ऑफ अ हाई वैक्यूम प्रोसेस, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, एक यहाँ पे एक डायग्राम को शो कर दिया गया है विच इज रिलेटेड फॉर द कंटेनर्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके क्या पास बताया जा रहा है कि एक चारकोल एब्जॉर्ब हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू वेसल्स प्रोसेस के अंदर। ये रिजल्ट्स फॉर द हाई वैक्यूम पे जनरेट करेगा। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द हाई वैक्यूम ऑफ इक्विपमेंट। इसको हम डिवर फ्लास्क भी कह सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड एयर एंड द लिक्विड हाइड्रोजन प्रोसेस। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसमें हम इजीली वैक्यूम के प्रोसेस को कर सकते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन रिलेशनशिप ऑफ फिनोमेना। यहाँ पे आपके पास सिलिका क्या है, एब्जॉर्बेंट्स दिए हैं, हमने एब्जॉर्बेंट्स डिस्कस किए थे। सिलिका जेल्स होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स हैं व्हिच कैन इजीली यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना ऑफ प्रोसेसेस। एंड द थर्ड इज, सेकंड डिस्कस करते हैं, ऑल गैस मास आर द डिवाइस फॉर द कंटेनिंग गैस एब्जॉर्बेंट्स एक्टिवेटेड चारकोल। अब यहाँ पे डिस्कवर किसको किया गया है, एक्टिवेटेड चारकोल को डिस्कस किया गया है। एक्टिवेटेड चारकोल आपके पास क्या बताया गया है कि हमने बताया था कि कोल माइन में हम क्या कर सकते हैं कि हम मास्क यूज कर सकते हैं, मास्क यूज करते हैं कोल माइन में। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल को एक्टिवेट कराया जाता है, जितनी भी पॉइजन्स ऑफ गैसेज हैं, ताकि वो इनहेल ना हो बॉडी के अंदर, वो एब्जॉर्ब हो जाए इस पर्टिकुलर चारकोल के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास मास्क, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा के एक्सप्लेन कर दिया है कि इससे थोड़ा वेरीफाई हो जाएगा कि गैस मास्क का प्रोसेस क्या कहलाता है।
थर्ड रिलेशनशिप इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। अब कलरिंग मैटर्स के अंदर से हमने सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करना है, रिमूव करना है कलरिंग मैटर्स को फ्रॉम द सोल्यूशन। तो एनिमल चारकोल इट्स मीन्स कि आपके पास बोन्स होता है एनिमल्स का, उसका चारकोल की फॉर्मेशन कर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल को भी यूज किया जाता है वो कलर इम्प्योरिटीज के तौर पे। केन शुगर प्रोसेस है आपके पास एंड मेनी काइंड्स ऑफ प्रोसेस विच आर यूज फॉर द एडजॉर्प्शन फिनोमेना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, कोल माइन में मास्क वगैरह, यहाँ पे आपके पास एनिमल चारकोल यूज हो रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल है जो रिमूव करेगा कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय एब्जॉर्बिंग कलर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इसकी एग्जांपल दे दी है आपके पास केन शुगर प्रोसेस में। And the fourth is heterogeneous catalysts. Heterogeneous catalysts are basically the molecules of reactant adsorb at the catalyst surface where they form our adsorptions of complexes phenomena. So it means यहाँ पे क्या है, decomposition हो रही है for the productions of the molecules which take off the molecules of the surfaces. तो ये आपके पास homogeneous and heterogeneous catalyst है। अब आपके पास दो different phenomena दिए हुए हैं catalyst surfaces का। कैटलिस्ट पार्टिकल्स को किस तरीके से सेपरेट आउट किया जाएगा, एक्टिवेट किस तरीके से करवाया जाएगा। तो डिफरेंट प्रोसेस हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली क्या है, स्पीड अप रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इज एडसॉर्ब इन अ सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट्स, उसके ऊपर, ठीक है। एंड द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन का एक प्रोसेस पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया है। इस मैकेनिज्म के अंदर क्या बता रहे हैं कि एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल है विच इज एडसॉर्ब इन स्पेसिफिक्स ऑफ द कंटेनर्स। जो रिलेशनशिप आपके पास क्या दे रहा है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स का फिनोमेना जनरेट कर रहा है और हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स का फिनोमेना जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस आर द ग्रेड ऑफ सल्फाइड ओर्स मौजूद हैं जो सिलिका एंड डिफरेंट अर्थी मटेरियल्स जो होते हैं उनके जरिए फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस कराया जाता है, जो एब्जॉर्प्शन का और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह में हम यूज करते हैं। ये एक बेसिकली पर्पस ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेट यानी मिनरल मटेरियल्स को हम अलग कर रहे होते हैं और अर्थ मटेरियल्स हमारे पास अलग जनरेट हो रहे होते हैं। यानी हम ओर्स एंड ऑयल्स की फॉर्मेशंस को क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ फिनोमेना है बिटवीन द मिक्सचर्स ऑफ बबल्स के दरमियान। तो यहाँ पे हम अगर इसको हम रीड आउट करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपके पास क्या बता रहा है, इस प्रोसेस को जनरेट कर रहा है और साथ में आपके पास इस डायग्राम्स की डिस्क्रिप्शंस को बता रहा है, ठीक है। ये आपको रीड आउट करना है। द ऑयल वेटेड मिनरल पार्टिकल्स are absorbed by the stabilize of air bubbles which rise to the surface where our gauge particles are wetted by the water settle down in a surface according to the descriptions for the diagrams, ठीक है। ये एक फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस है। अब सेकेंड आपके पास क्या है, क्रोमोटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमोटोग्राफिक एनालिसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो क्रोमोटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स है, बेसिकली हम इसको एक सेपरेशन टेक्निक्स भी कह सकते हैं, जो बेसिकली सेपरेट आउट करती है मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू एनालाइज, आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई, क्वांटिफाई द मिक्सचर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। क्या काम कर रही है ये बेसिकली कंपोनेंट्स को ऑर्डर टू एनालाइज कर रही है, आइडेंटिफाई भी कर रही है, प्यूरिफाई भी कर रही है, क्वांटिफाई भी कर रही है मिक्सचर्स और या कंपोनेंट्स के दरमियान। क्रोमोटोग्राफी का पर्पस क्या है, क्रोमोटोग्राफी या बेसिकली एक सेपरेशन का मेथड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना कुछ एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ डिसॉल्व होते हैं रिएक्शंस में। तो यहाँ पे आपके पास फिनोमेना क्या कर रहा है, द सेपरेशंस ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट बिटवीन द स्टैटिक एंड द मोबाइल। जो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग फेजेस होते हैं उनके दरमियान ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जनरेशन किसकी की है, इन्होंने गैस क्रोमोटोग्राफी भी एक टेक्निक है जो बेसिकली एड्सॉर्प्शन फिनोमेना के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक ही एड्सॉर्प्शन की टेक्निक है सेपरेटिंग टेक्निक से। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। गैस क्रोमोटोग्राफी ये एक सेपरेशन मेथड है। गैस क्रोमोटोग्राफी में क्या होगा, हम सेपरेट करेंगे वेपराइज सैंपल को विद अ कैरियर्स ऑफ गैसेस। कितनी गैसेस उसके अंदर मौजूद हैं, अब वो आपके पास मूविंग फेज, मोबाइल फेज में मौजूद हैं, और साथ में हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए होते हैं और कॉलम में हमारे पास क्या मौजूद होता है, कंपोज ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन होता है या सॉलिड सोल्यूशंस ऑफ वीट्स मौजूद होती हैं, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड है, अकॉर्डिंग टू हम इंडस्ट्रियल टेक्निक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गैस क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक कहते हैं, जो आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन की आपके पास क्या आती है, एप्लीकेशंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास क्या था, सारा हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये सारे इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, ये बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं जो इंडस्ट्रीज में और लेबोरेटरीज में इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द हाई रिलेशनशिप ऑफ एड्सॉर्प्शन फिनोमेना।
production of high vacuum process, gas mass of process, removal of coloring matters, heterogeneous of the catalyst of the analysis between the molecules, and the fifth is fourth flotations of process, and the chromatographic techniques यानी analysis by the separatings of mixtures in their components. अब different components हो सकते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी गई थी गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स क्या होती हैं, मूविंग्स ऑफ ऑर्गेनिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन हो रही होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान, किस तरीके से इसको सेपरेट आउट किया जाएगा. यहाँ मैंने पिक्चर्स इस वजह से लगा दी हैं तमाम टॉपिक के साथ कि आपको बेसिकली एक फिनोमेना समझ में आए कि बेसिकली फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते किसे हैं. अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स के रिलेशनशिप से ज्यादा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगी कंपैरेटिवली अगर हम सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर दें, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सरफेक्टेंट्स. सरफेक्टेंट्स बेसिकली फिनोमेना क्या होता है. सरफेक्टेंट्स आर बेसिकली आपके पास डिफाइन क्या कर रहा होता है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ थ्री वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही है बिटवीन द थ्री वर्ड्स, यानी सरफेस एक्टिव एजेंट्स का डिस्कवर कर रहा है, ठीक है. अब सरफेक्टेंट्स हमने बताया थ्री वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स पे डिपेंड कर रहा है. सरफेक्टेंट्स का काम क्या होता है, सरफेक्टेंट्स का काम ये होता है कि वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, ठीक है. तो सरफेक्टेंट्स भी आपके पास एप्लीकेशंस में किस में आ जाएगी, एडजॉर्प्शन के रिलेशनशिप में ही हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे बता रहा है कि रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसको रीड आउट करते हैं कि सरफेक्टेंट्स आर द मटेरियल्स दैट लोअर द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशंस बिटवीन द टू लिक्विड्स or between the liquids and a solids relations, ठीक है. Our materials are the effect of interfacial surface tension can consider our surfactants, but it is a practical sense the surfactants may act as wetting agents, emulsifiers, foaming agents and dispersants. तो आपके पास सर्फेक्टेंट्स का फिनोमेना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाई है ताकि इससे रिलेशनशिप आपके पास क्लियर हो कि सर्फेक्टेंट्स आर द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब टू अ सरफेस और इंटरफेस causing make a decrease in the surface tension process. So it means कि आपके पास वाटर का रिलेशनशिप है, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है. हम ऑयल के मॉलिक्यूल से इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट से हम इसको कंटेन आउट कर रहे हैं. तो ये आपके पास बेसिकली जितने भी आपके पास ये माइसल्स बन रहे हैं तो आपके पास क्या बना रहा है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं. अब इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स को हम कैटेगराइज करेंगे इन फेजेस में, ठीक है. तो आपके पास एक हेड फेज रिलेशनशिप होगा और एक आपके पास टेल फेज ऑफ रिलेशनशिप. एक हाइड्रोकार्बन की चेन बन रही है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास ऑयल एंड वाटर है तो इसकी रिलेशनशिप से आपके पास हाइड्रोकार्बन की एक चेन बन रही है. उस हाइड्रोकार्बन की चेन को हमने किस तरीके से कहा कि मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप डिस्कवर हुआ है. इस फंक्शनल ग्रुप्स को मैंने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया. एक मेरे पास है हाइड्रोफिलिक पोर्शन और एक मेरे पास है हाइड्रोफोबिक पोर्शन. दैट इज द हेड पोर्शन एंड दैट इज द टेल पोर्शन. दैट इज द पोलर पोर्शन, दैट इज द नॉन पोलर पोर्शन. दैट इज, हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये वाटर लविंग पोर्शन है एंड द वाटर हीटिंग पोर्शंस. सो द सर्फेक्टेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर द कैरेक्टराइज. हमने यहाँ पे इसको जनरेट किया है कि हाइड्रोफिलिक पोर्शंस आपके पास क्या है एंड द लिफोलिक टेल है, यानी हाइड्रोफोबिक पोर्शंस क्या कहलाते हैं, लाइक ऑयल्स एंड हेट्स वाटर्स, लाइक वाटर्स एंड हेट आपके पास क्या है, ऑयल्स. ये फिनोमेना है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हिच कैन एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब इन अ सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करें फॉर द सर्फेक्टेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप. अब रोल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स का क्या रिलेशनशिप है. रोल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स आपके पास क्या डिफाइन कर रहा है कि सरफेस एक्टिव एजेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्लीनिंग, वेटिंग, dispersing, emulsifying and the many kind of purposes which are using for the applications and the productions, including paints, emulsion, adhesive processes, sanitizers, shampoos, toothpaste. अब यहाँ पे बेसिकली रोल क्या है सरफेस एक्टिव एजेंट का, ये क्या पर्पस क्या और क्या काम कर रहा है इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर, हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिकली बता दिया है कि सर्फेक्टेंट्स आर बेसिकली द सरफेस एक्टिव एजेंट्स व्हिच कैन रिड्यूस, आपके पास क्या करेगा, सरफेस टेंशन को इजीली रिड्यूस करेगा. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स हैं आपके पास, 4 टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स इसको कैटेगराइज किया है. नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, एनायनिक, कैटायनिक एंड एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स, जिसको हम ज्यूटेरायनिक सर्फेक्टेंट्स भी कहेंगे. यहाँ पे आपके पास डायग्राम से रिलेशनशिप किया गया है, हेड टू टेल रिलेशनशिप ऑफ फिनोमेना, हाइड्रोफिलिक पोर्शंस एंड द हाइड्रोफोबिक फिनोमेना अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है. हमने इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को ब्रेकआउट किया, उसी एक डायग्राम के रिलेशनशिप से इसको डिफाइन किया, अकॉर्डिंग टू 2 टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप बने और उस रिलेशनशिप को हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू एनायनिक, कैटायनिक एंड एम्फोटेरिक ऑफ द सर्फेक्टेंट्स, ठीक. टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स हो गई है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स एंड द
आयनिक सर्फेक्टेंट्स। अब इनकी क्या फिनोमेना है, रिलेशनशिप है, मैनी लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल exhibit the some surfactant properties. Anionic surfactants contain क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप करेगा इन देयर हेड ऑफ रूल्स अकॉर्डिंगली। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स आप पॉजिटिवली चार्ज पे डिपेंड करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल वगैरह में हम इसको इजीली यूज करते हैं। एंड द ड्यूटेरायनिक जिसको हम एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, ये बोथ द कैटायनिक एंड द एनायनिक ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ फिनोमेना पे डिपेंड कर रहा होता है विद द टू काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये हाँ हमने टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स को डिफाइन किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम आपके पास बता दी गई है कि टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स हैं आपके पास। एक हाइड्रोफोब्स हैं एंड हाइड्रोफिल्स हैं। अब हाइड्रोफोबिक जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेबल किस पे कर रहा होता है, हाइड्रोकार्बन चेन पे डिपेंड कर रहा होता है, दैट हैज नो एफिनिटी फॉर द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। एंड द हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आपके पास दैट काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो आपके पास क्या करेगा, जिनकी एफिनिटी जो होती है वो फॉर वाटर पे डिपेंडेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनायनिक, कैटायनिक और आपके पास एम्फोटेरिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के अकॉर्डिंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव रिलेशनशिप से डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसकी एक जर्नल एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर सारी। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज जनरेट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स एंड इट्स एग्जांपल्स। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है आपके पास, कि आपके पास मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है नीचे, रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। ये सम एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, यहाँ पे आपके पास एनायनिक सर्फेक्टेंट्स का रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू चेन रिएक्शंस जनरेट हो रहा है आपके पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के अंदर, क्योंकि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हमने डिस्कवर किया था कि लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एक्सिबिट्स फॉर द सर्फेक्टेंट्स प्रॉपर्टीज, तो लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया है। And the second is anionic surfactants and the cationic surfactants. Anionic and the cationic surfactants are basically the relationship of functional groups. यहाँ पे भी आपके पास cationic surfactants positively charged for the cationic surfactants, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास anionic surfactants and the cationic surfactants का relationship, ये बेसिकली डिपेंडेबल है फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब इन अ पर्टिकुलर्स ऑफ अ सब्सटेंस, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सर्फेक्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं, हम आगे जाके इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करेंगे विद द रिलेशनशिप ऑफ, हमने बता दी कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और साथ में ये कैटेगराइज होता है कि एमल्सिफाइंग, डिटर्जेंट, सोप, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट्स बेसिकली एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो बेसिकली एक्वस सॉल्वेंट्स पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर वो हाइड्रोफोबिक कंडीशन में हो, अगर हाइड्रोफिलिक कंडीशन पे होते हैं तो एफिनिटी फॉर वाटर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये वाटर के अंदर मौजूद हैं तो ये आपके पास, अगर ये इस वाटर के अंदर क्या है मौजूद हैं तो ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कैरेक्टराइज होगा इस माइसेल्स के रिएक्शंस पे, इस पे डिपेंड करेगा। अब वो रिएक्शंस क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है या हाइड्रोफोबिक पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है या हाइड्रोफोबिक पोर्शन है तो हाइड्रोकार्बन चेन पे डिपेंड कर रहा है। अब वो हाइड्रोकार्बन चेन अकॉर्डिंग टू दिस वेटिंग एजेंट्स, एमल्सिफायर्स, फॉर्मिंग एजेंट एंड डिस्पर्स मीडियम्स एंड दैट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स से हम इसको यहाँ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अगर वो सोप के अंदर हो रहा है, सोप के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, डिटर्जेंट्स के अंदर होता है, डिटर्जेंट्स के अंदर क्या प्रोसेस होगा, आपके पास पेंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप दे रहा है वो अपना। ठीक है, अगर वाटर है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व किया हुआ है तो वो क्या रिलेशनशिप दे रहा है। अगर वाटर है इसके अंदर मैंने कुछ सोप या डिटर्जेंट्स को डिसॉल्व किया हुआ है तो वो क्या रिलेशनशिप दे रहा है। सोप है उसको किया हुआ है तो वो क्या दे रहा है रिलेशनशिप। तो मेनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, ज्यूटेरायनिक सर्फेक्टेंट्स है, ये भी आपके पास यहाँ पे नेचुरल सोप दिया हुआ है। अब सोप का अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ दिस पिक्चर से क्या रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ पे आपके पास फिनोमेना डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर सोप मौजूद हो तो सोप मौजूद होगा किसी वाटर कंटेंट के अंदर तो वो आपके पास कोई ना कोई डिवाइड करेगा हाइड्रोफोलिक एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट के रिलेशनशिप से फॉर द हेड टू टेल रूल ऑफ फिनोमेना। ठीक है, तो ज्यूटेरायनिक एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस व्हिच आर कंटेन फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सोप आपके पास क्या होता है, सोप का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू C17 पे डिपेंड कर रहा होता है इसका फॉर्मूला, H35COO नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास सोप का रिलेशनशिप बता दिया गया है। इमल्जन, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्जन। इमल्जन का कैरेक्टराइजेशन बिहेवियर विद द सेम एज अ सर्फेक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरीके से सर्फेक्टेंट्स का प्रोसेस है कि ऑयल और वाटर के ड्रॉपलेट्स के हमने रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, इसी तरीके से हम इमल्जन में डिस्कस करेंगे। इमल्जन में आपके पास क्या है, लिक्विड इज अ डिस्पर्स एंड अनदर्स इज इमिजिबल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है वाटर पे हो रहा है, एंड इमिजिबल्स ऑफ लिक्विड इस ऑयल पे डिपेंड कर रहा है। लिक्विड को हम कैटेगराइज किस पे करते हैं, डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दो हिस्सों में आपने लिक्विड को कैटेगराइज किया है।
अब टाइप्स ऑफ इमल्जन किस पे होता है? टाइप्स ऑफ इमल्जन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर यानी ऑयल जो है वो वाटर के अंदर है या वाटर जो है ऑयल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास डायग्राम बताई गई है। अगर ऑयल जो वाटर के अंदर है वो तो डिस्पर्स फेज कहलाएगा, अगर वाटर जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है, क्योंकि ऑयल इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप इसका बन गया। सेकेंडली यहाँ पे वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल का आपके पास क्या रिलेशनशिप बताया है कि आपके पास वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है। ठीक है, वाटर मौजूद है ऑयल के अंदर, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, और ऑयल आपके पास येलो कलर का ही होता है, तो येलो कलर का ये ऑयल दिखाया गया है, और ये आपके पास ब्लू कलर का वाटर से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या बनाया है कि ऑयल जो है वो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है, तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, यानी एक ऑयल से और एक वाटर से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम आपके पास क्या डिफाइन करेगा कि आपके पास अगर वाटर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस फेज में दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो आपके पास कंटिन्यूस फेज में दिया हुआ है, और अगर ऑयल के ड्रॉपलेट इसके अंदर मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज दिया हुआ है। अब मैं अगर इस लिक्विड को, इसके एक ड्रॉपलेट को मैं कैटेगराइज करूंगी, निकालूंगी, बाहर बताऊंगी, इसकी स्टडी करूंगी, तो वो स्टडी आपके पास कुछ ऐसी स्टडी नहीं बन जाएगी जो हमने सर्फेक्टेंट्स में डिस्कस की, वो आपके पास एक सर्फेक्टेंट्स का होगा। फिर हम इसी के फिनोमेना को भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये आपके पास सर्फेक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो कैटेगराइज हुए हैं हाइड्रोफ्लोइक पोर्शंस में और हाइड्रोफोबिक पोर्शंस में। ठीक है, सेम काइंड ऑफ स्टडी है आपके पास, इमल्जन का फिनोमेना है। इमल्जन के फिनोमेना में हमने इसका आपको डिस्कवर किया। अब यहाँ पे एग्जांपल आपके पास क्या दी हुई है, मिल्क की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है मिल्क की, क्योंकि ऑयल के ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे वाटर के अंदर, यहाँ पे वाटर इन ऑयल होगा, तो आपके पास क्या हो सकती है, बटर हो सकती है, क्रीम हो सकती है, फूड लिवर ऑयल्स की तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वाटर इन ऑयल की। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमल्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। अब प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन में हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन वही फिनोमेना हम पीछे डिस्कस करेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्जन, ऑयल इन वाटर इमल्जन का फिनोमेना जो हमने पीछे डिस्कवर किया है। Emulsion is equal to emulsifying agent plus dispersion medium, disperse phase at slowly। अब यहाँ पे क्या है, emulsifying agent यूज किया गया है। आपने क्या किया, लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल डाला, आपके पास कुछ कंटेंट इस तरीके के आए, ठीक है, उसके बाद आपने मिक्स किया इसको, कुछ सॉल्यूशंस आपके पास ये फेज में बने, यानी एक आपके पास डिस्पर्स फेज बना, एक आपके पास डिस्पर्जन मीडियम बना। इट्स मीन आपके पास जो वाटर की क्वांटिटी मौजूद थी, जो वाटर मौजूद है वो आपके पास कंटिन्यूस फेज में मौजूद है। ठीक है, वाटर मौजूद है ज्यादा, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गए, ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज। ठीक है, ऑयल आ गया इसके अंदर, हमने इन दोनों को शेक आउट किया, तो शेक करने के बाद आपके बाद 2 लेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस बन गए। ठीक है, अब ये 2 लेयर्स ऑफ सब्सटेंस, मजीद इसको मैं हल करूं और उसका एक सब्सटेंस जनरेट करूं, और उसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा एमल्सिफाइंग एजेंट जो डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया जाएगा। ठीक है, ऐड स्लोली करूंगी तो मेरे पास इमल्सिफाइंग एजेंट एक बेसिकली कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस होता है जो बेसिकली क्या करेगा, विच हेल्प इन मेकिंग द इमल्जन स्टेबल्स। ठीक है, सब्सटेंसेस लाइक अ सोप, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सोप भी ऐड कर सकती हूँ और डिटर्जेंट्स भी ऐड कर सकती हूँ। सोप और डिटर्जेंट दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस यानी सर्फेक्टिंग एजेंट्स हैं जिसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी कहते हैं, विच हेल्प्स टू मेक अ सॉल्यूशंस इन अ थिक फॉर्मेशन। अब आपके पास क्या है, थिक फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन जनरेट करेगा। ऐसी एग्जांपल्स हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये आपके पास मायोनीज है विद इमल्सिफायर दिया हुआ है, ये मायोनीज विदाउट इमल्सिफायर दिया है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं और कंटेंट्स मौजूद है आपके पास, 2 सेपरेटिंग लेयर्स हैं। कुछ हमने इसके अंदर हम यहाँ पे सोप या डिटर्जेंट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे एज अ सब्सटेंस ऐड करेंगे, जिससे आपके पास क्या बनेगा, एक थिक सब्सटेंस ऑफ सोल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज में सोप और डिटर्जेंट्स को ही शामिल किया जाए, लेकिन मेनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच आर कॉल्ड एमल्सिफायर और एमल्सिफाइंग्स ऑफ एजेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो हम इसका रिलेशनशिप ऑफ क्या अप्लाई करेंगे, इसी से मिलता जुलता कोई रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे फोर सब्सटेंस को इस तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, अब आप हमने हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस दी हुई हैं। बी वैक्स है आपके पास, ठीक है, बी वैक्स दी हुई है, बटर है, और इमल्जन किस तरीके से बन गया, क्रीमी इमल्जन बन गया विद द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशंस। 2 टाइप्स ऑफ लेयर फॉर्मेशन है, इसको मजीद हमने मिक्स आउट करेंगे, मिक्स आउट करने के बाद आपके पास सब्सटेंस क्या होगा, ये जनरेट होगा। कुछ सब्सटेंस बहुत ज्यादा मिक्सिंग करने के बाद भी जनरेट हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस को इमल्सिफाइंग एजेंट्स के जरिए क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस विच आर कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऑफ फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर लिया, किसी के जरिए किया जाएगा और किसी को मजीद क्या करते हैं, प्रोसेस के जरिए इमल्सिफाइंग का इमल्जन जनरेट की जाती है। ठीक है,
अब डीमल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? डीमल्सिफिकेशन भी आपके पास इमल्जन से ही निकल कर आया है, लेकिन डी का मेथड आ रहा है, तो डी का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। तो डीमल्सिफिकेशन आपके पास क्या हो जाएगी कि अलग अलग कर देना, यानी आपके पास क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस को अलग अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी कि आपके पास क्या है? मिल्क है। अब मिल्क के अंदर से आपने क्रीम अलग करनी है और उसके वाटर का सब्सटेंस जो भी है वो उसमें से अलग अलग करना है। तो ये दो सब्सटेंस को अगर मैं अलग अलग करना चाहूंगी तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूंगी? हीटिंग का मेथड अप्लाई करूंगी, ठीक है। ये मेथड हमारे पास हीटिंग के मेथड से भी अलग हो सकता है। ये मेथड हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड होगा, सेंट्रीफ्यूगिंग मेथड के जरिए भी अलग किया जा सकता है। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के जरिए भी मैं इसको अलग कर सकती हूँ। यानी ये डीमल्सिफिकेशन मतलब जो भी आपके पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हम इसको ब्रेकआउट करेंगे बाय द इमल्शंस ऑफ मेथड, तो वो आपके पास क्या कहलाया जाएगा? डीमल्सिफिकेशन का मेथड कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे बताया है कि वो हीटिंग के जरिए भी मैं अलग कर सकती हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड उसके जरिए भी अलग किया जा सकता है, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स मेथड। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग बोला हमने, सुटेबल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड है, ठीक है। एंड द सेकंड इज बाय द केमिकल डिस्ट्रक्शंस ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स, यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का नाम आया है। तो यहाँ पे हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स डिस्कवर किए थे। सोप एंड डिटर्जेंट्स के रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं सोप का अगर मैं रिलेशन बताऊं, सोप का रिलेशनशिप किसके साथ कर रही हूँ? एसिड के साथ कर रही हूँ। तो आपके पास क्या बनेगा? इसका मैं HCl के साथ रिलेशनशिप कर रही हूँ तो आपके पास C17H35COO बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा? आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है? बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन इमल्सिफाइंग एजेंट को बाय एडिंग एसिड्स के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इमल्सिफिकेशन एंड डी इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस थे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ इमल्जन प्रोसेस, ठीक है। ये इमल्जन का प्रोसेस था, किस तरीके से एक टू सेपरेटिंग लेयर्स को एक फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, वो आपके पास इमल्जन का प्रोसेस आ गया। प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन किस तरीके से की जाएगी कि आपके पास 2 layers ऑफ जनरेशन की जाएंगी। सब्सटेंस लाइक अ सोप एंड डिटर्जेंट व्हिच हेल्प्स टू इमल्जन इन स्टेबल्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इसके अंदर ऐड करेंगे व्हिच कैन फॉर्म अ इमल्सिफायर्स। तो ये आपके पास डीमल्सिफिकेशन का प्रोसेस था। ये इससे रिलेटेड आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। थैंक यू।